Alacağınız pulhor. Sonrasını pulhor. Beni koru da ilk kelimler oluyor. Bana çok Actually, one of the activities. No, one of the activities was to win to one. number 1. İşe gelip yaparak kımdan from more than one ward, retained only one electoral ward and resigned from their additional wards. Also one electoral ward was vacant as no votes were polled. Accordingly, during the recent process of DDC elections in the UT J&K, the election in the vacant electoral wards of SMC was also conducted, and as per the result notification of Chief Electoral Officer J&K, the following candidates have been elected as councillors for Srinagar Municipal Corporation. Mr. Mohammad Ashraf Dar, Electoral Ward number 14, Mr. Salman Ali Sagar, Electoral Ward 18 and 69, Ms. Rihana Parvez, Electoral Ward number 46. Now today on 2nd January 2021, under Section 33 of Jammu and Kashmir Municipal Corporation Act 2000, followed by Sub-Rule 3 of the Rule 4 of J&K Municipal Corporation Procedure and Conduct of Business Regulations 2005, the Divisional Commissioner Kashmir has to administer oath to the newly elected councillors of the Srinagar Municipal Corporation. Accordingly, I request the Divisional Commissioner, Mr. P.K. Pole, to kindly start the proceedings. Harap. Görme. इस पर हम I, Mohammad Ashraf Dar, having been elected as councillor of the Municipal Corporation of Srinagar, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Salman Ali Sagar, having been elected as councillor for the Municipal Corporation of Srinagar, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. I, Rihana Parvez, having been elected as councillor of the Municipal Corporation of Srinagar, do swear in the name of God, solemnly affirm that सिस्टर कॉर्पोरेशंस का एमओयू करने जा रही है और हमारे कॉर्पोरेट वहाँ भी विजिट कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें भी अच्छी है, जो दूसरी दुनिया ले सकती है, और बहुत सारी चीजें होती है जो दूसरी जगह भी अच्छी है, जो हमें रोकनी चाहिए। बाहर अर्बनाइजेशन काफी हुआ है, हमारे वादे में उतना नहीं है, खाली 15-20% ही पॉपुलेशन
सिटीज में रहती है ज़्यादातर पॉपुलेशन 80% या तकरीबन पॉपुलेशन का अभी भी देहातों में रहती है। लेकिन आने वाले दिनों में अर्बनाइजेशन बढ़ना, दुनिया का भी इतिहास वही रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ी। हमारे यहाँ भी अर्बनाइजेशन पिछले 1 डेकेड 2 डेकेड में काफी बढ़ी है और आने वाले दिनों में वो बदस्तूर चालू की बढ़ेगी। सिटीज की समस्या और इश्यूज जो है डेफिनेटली और चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। सर को ये भी डिस्कस कर रहा था कि महाराष्ट्र में तकरीबन 45% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में आती है और 45% पॉपुलेशन को सुविधाएं देने के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे कॉर्पोरेशंस, तकरीबन 25 के करीब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, म्युनिसिपल काउंसिल्स, म्युनिसिपल कमिटीज, कुल मिलाकर के 300 के करीब यूनिट्स हैं। और अर्बन डेवलपमेंट में भी अलग अलग 3 विंग्स है, हाउसिंग के लिए अलग है, अर्बन डेवलपमेंट में टाउन प्लानिंग के लिए अलग है और बाकी इश्यूज के लिए अलग है। सभी आईएएस अफसर की अगर गिनती करेंगे तो 50 आईएएस अफसर होंगे जो अकेले हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में होंगे, चाहे वो सेक्रेटरीट में है। से दिल की अभी गहराइयों से मुबारकबाद। तो बाकी जो भी हमारे काउंसलर्स हैं उनका भी शुक्रिया, वो आए हमारी शॉर्ट नोट्स पे आए। खासकर दिलकाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। कलील आपके पास बहुत कीमती वक्त था लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला और हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से पूरे वादी आवाम को नए साल की खुशमदीद बात कहना चाहता हूँ। नया साल अमन, शांति और तरक्की लाए। अल्लाह हमें जो 2020 में जो वबा थी उससे निजात दे और इंशाअल्लाह आने वाला साल जो है तरक्की भरा रहे। जहाँ तक जो आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर में 3 मेंबरान को हल्फ वफादारी देने का बात है, तीनों मेंबरान ने जो प्रेस्क्राइब वोट है वो ली है। मैंने भी उनको बेस्ट विशेष कही है। जिन मकसद के लिए उनको लोगों ने चुना है वो मकसद में वो पूरा हो, लोगों के काम कर सके, ऐसे बेस्ट विशेष मैंने दिए। सर विंटर्स का सीजन चल रहा है और बिजली का निज़ाम जो है पूरी तरह से मुतासिर है लोगों से, तो क्या है व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्योंकि हमेशा विंटर्स में हमें जो है इस मुसीबत से छुटकारा कब तक मिलेगा? हाँ नहीं, बिजली का मेन कारण ये है कि हमारी जो डिमांड है और अवेलेबिलिटी जनरेशन उसमें ही गैप है। विंटर में तकरीबन 2200 मेगावाट की डिमांड रहती है और प्रोडक्शन होता है हार्डली 1500 या 1600, तो 600-700 के करीब जो है डेफिसिट रहता है। उससे चलते डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली रहनी है। प्रयास है डिपार्टमेंट का कि लोगों को जो शेड्यूल्ड कट है उसके हिसाब से तो कम से कम बिजली दे, और कहीं अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो सिटीज़ में 24 घंटे में, रूरल एरिया जो है तो 72 घंटे में जो है उसको रिप्लेस करें। सर अगर देखा जाए 4G नेटवर्क की सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हुई है, BBC सॉरी मसला सब्जुडिस है और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी वो देखती है। क्या कुछ कहना चाहिए वो पहले शेयर कीजिए। पहले अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं और उन लोगों का जिन्होंने वोट किया, वो चाहे सोलना में थे या सोवरा में थे, लोग जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में आके वोट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर अपने उन दोस्तों का, कलीग्स का, जिन्होंने जिस भी तरीके से हेल्प कर पाए उन्होंने हेल्प की, मैं उनका तहे दिल से, ये सही मौका है उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का। जहाँ मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे 2 जगह से मैंडेट दिया, वहीं उन वर्कर्स का जितने भी जिन्होंने भी एक एक करके इस मुकाम पे लाया मुझे, आज मुझे इलेक्ट कर रहा है यहाँ और मैंने आज वोट ले ली। शुक्रिया उनका। जो वादे किए जाते हैं आप जब वोट मांगे जाते हैं, ये कॉरपोरेशन पिछले जब से बनी है 2 साल में काफ़ी उथल पुथल रही है। यहाँ बदकिस्मती की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी और हम सब कॉरपोरेटर्स, यहाँ डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं,
यहाँ इमरान साहब बैठे हैं और जितने भी हम बाकी लोग यहाँ हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं जो अभी कॉरपोरेशन चल रही है ये स्टेबिलिटी की और श्रीनगर की डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी। हम यकीन दिलाते हैं हर एक को, यहाँ मीडिया को और अपने दोस्तों को, कि हम कॉरपोरेशन में स्टेबिलिटी लाएंगे। हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं होगा कॉरपोरेशन स्टेबल ना रहे। हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, डिप्टी मेयर साहब की लीडरशिप में, यहाँ बाकी हमारे इमरान साहब हैं। हमारा यही होगा कि श्रीनगर की तरक्की हो और हम कोशिश करेंगे हमारी यूनाइटेड वॉइस हो कॉरपोरेटर्स की, एक यूनाइटेड फोरम बने कॉरपोरेटर्स का, जिसमें डिप्टी मेयर साहब का तजुर्बा है, इमरान साहब है, बाकी लोग हैं, कि हम जहां हमें लगेगा कि गलत हो रहा है हम नुक्ताचीनी करेंगे, जहां हमें लगेगा कि जो अभी हेल्म पर है और वो गलत हो रहा है तो हम वहाँ क्रिटिसाइज़ करेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि श्रीनगर में तरक्की हो, जो लोगों को उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे कॉरपोरेशन के लोग खरा उतरे। हाँ, क्यों नहीं, हम सब मेयर साहब को सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद, अभी तक कुछ खैर वैसा कुछ हुआ नहीं है पिछले 2 साल में उथल पुथल के बगैर। हम उम्मीद करते हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसलिए इलेक्ट हुई है वो काम होगा। उसके लिए हम समझते हैं कि यूनाइटेड कॉरपोरेटर्स फोरम होना चाहिए, बनेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। हम यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम एक ग्रुप जो है कॉरपोरेटर्स का, वो हम अपना भी हमारा रोड मैप होगा, प्लान होगा, जो हम कॉरपोरेशन में जो सबसे बड़ा फोरम है हम उनके सामने रखेंगे और उनको बताएंगे कि श्रीनगर में कैसे बेहतरी होनी चाहिए। तो आपको ये कहा, एक यूनाइटेड कॉरपोरेटर्स फोरम की बहुत ज़रूरत है। हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, इमरान साहब हैं, बाकी लोग हैं, और हम चाहते हैं कि मेयर साहब भी हमारे साथ हमें सपोर्ट करें। अगर हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, हम अगर कुछ सोच रखते हैं, एक मैसिव जो एक बड़ा ब्लॉक है कॉरपोरेटर्स, अगर वो एक अच्छी सोच रखता है, उनके जो प्रपोजल्स होंगे, उनकी जो राय होगी, उसको पॉलिटिकल बेसिस पे, अच्छा और बुरे के बेसिस पे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे स्टेबिलिटी की और एक अच्छे श्रीनगर म्यूनसिपलिटी की।